Welcome my dear children, I am Sunaina Dogra, your English teacher, and today we are going to learn about class 10 First Flight, 4th chapter from the diary of Anne Frank. In this chapter we are going to learn about the story of Anne Frank, a girl who was German born and she was a Jewish girl. She had to stay in hiding with her family during the World War II that was happening, and her family had moved to Amsterdam after the Nazis had gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. So with her family she was forced to stay in hiding in July 1942 इन हिडन रूम्स ऑफ हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. तो उनके ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसमें कुछ ऐसे हाइडिंग प्लेसेस थे जहाँ पर उनको अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ा. यह वो समय है जब वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी, जब वो अपने सारे स्कूल को मिस कर रही थी, और तब उन्हें ये लगा कि मुझे कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए. even though my family is there with me, even though I have so many people around me, still there is someone who should be my best friend जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर सकूं और जो पेशेंटली मेरी बात सुन सके. तो उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया. So this story is all about what she has written in her diary, about her feelings, about her emotions. So let us just go through the summary, because when you are small and you want someone to listen to you, and when there is no one who can understand your feelings, that time diary is the best friend with whom you can share all your feelings, and the diary is going to save each and every word of your feeling in its heart very deeply, and it will be forever. So in this story we learn that writing a diary was really a strange experience for Anne. As she was writing it for the first time, she felt that nobody would be interested in the musings of a 13-year-old girl, but in her state of depression, she wanted a companion, and she found that only a diary could be her true and patient friend, wherein she could squeeze out her boredom. तो उसे ये लगा कि एक 13 साल की बच्ची की कहानी सुनने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसके ऊपर बीती हुई हर घटना के बारे में जानने के लिए कोई उत्सुक नहीं होगा. इसलिए उसे एक ऐसे कंपेनियन की ज़रूरत थी जो उसकी सारी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन को समझ सके, और उसके लिए उसने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया जिसके साथ वो अपनी हर चीज़ को शेयर करने में लग गई. और फिर उन्होंने क्या किया, शी रोट दैट शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर मार्गॉट. तो उनकी एक बहन है, उसका नाम है मार्गॉट, एंड शी इज़ 16 years old, and her parents are very loving parents. Her parents always loved their children very much. There were about 30 people whom she could call her friends. So एन ने ये भी लिखा है कि उसके पास 30 लोग ऐसे थे जिनको वो अपने फ्रेंड्स कह सकती है. शी ऑल्सो हैड अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, बट स्टिल शी वॉन्टेड अ ट्रू फ्रेंड विच शी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी. और उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, किटी. तो बहुत ही प्यार से उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा है जिसका नाम है किटी. Anne was sent to Montessori nursery school. She stayed there till she was 6. That time the headmistress was Mrs. Cuperus. She was given tearful farewell at the end of the year. Her grandma, whom she loved too dearly, fell ill in 1941 and was operated on. She died in 1942, which left her greatly shocked. तो जब वो 6 साल की थी तब उन्हें एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया, और वहाँ पर उनकी जो प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरस, और मिसेस क्यूपरस रिटायर हो गई, और 1 साल के बाद ही उन्हें बहुत ही सब बच्चों ने मिलकर दुख भरी विदाई दी. और तभी उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, एन फ्रैंक की ग्रैंड मदर, जिसको बहुत ज़्यादा चाहती थी, जिसकी बहुत ही क्लोज थी, वो 1941 में बीमार हो गई, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ, और 1942 में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से एन फ्रैंक बहुत ही शॉक में चली गई, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई. But on the day of the result, all the students were nervous. Out of the 9 teachers, Mr. Keesing, a mathematics teacher, often kept annoyed with Anne
as she was very talkative. तो हर बच्चे की आदत होती है स्कूल में वो बहुत बातें करते हैं और इस वजह से उन्हें डांट भी पड़ती है. तो ऐसे ही एन फ्रैंक भी जब छोटी थी तो वो बहुत ही नॉटी एंड बहुत ही बातूनी थी. शी वॉज वेरी टॉकेटिव इन द क्लास एंड हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कीसिंग वो हमेशा उससे खफा रहते थे, हमेशा उससे गुस्सा रहते थे. और उन्होंने एज अ पनिशमेंट व्हाट डिड ही डू, he made her write an essay on a chatter box. टॉपिक उन्होंने क्या दिया, चैटर बॉक्स. तो जो बहुत ही टॉकेटिव होता है उसे हम चैटर बॉक्स का टाइटल भी देते हैं. सो मिस्टर कीसिंग जो है उन्होंने एन फ्रैंक को चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए कहा, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बी रिटन बिकॉज एक छोटा बच्चा है, वो चैटर बॉक्स के ऊपर क्या स्टोरी लिखेगा, क्या ऐसे लिखेगा. Somehow she managed to complete her homework. She thought that talking was a student's trait. और उसे क्या लगता था कि बातें करना तो एक स्टूडेंट का हक है, वो स्टूडेंट ही कैसा जो टॉकेटिव ना हो. तो किसी भी तरह से उसने वो ऐसे कंप्लीट की. She thought that talking was a student's trait. She had inherited talkative nature from her mother. तो ये जो टॉकेटिव नेचर है वो उसके पास कहाँ से आया है, उसकी मदर से आया है. After reading the essay, Mr. Keesing laughed heartily. Once again, he gave her another essay, An Incorrigible Chatterbox, as a punishment. She did not talk for 2 lessons. During the 3rd lesson, he again asked her to write on the topic, quack, 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 said Mistress Chatterbox. तो जो मिस्टर कीसिंग है वो उसके पीछे ही पड़ गए थे और उन्होंने बार बार उसे चैटर बॉक्स के ऊपर ही ऐसे लिखने के लिए कहा. पहले उन्होंने सिर्फ चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिया, फिर उन्होंने कहा एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, उसके ऊपर ऐसे लिख कर दिखाओ. फिर उन्होंने उसे एक और नया टॉपिक दिया, वो था क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स कह रही है, ऐसा एक ऐसे लिखो. At this, Anne laughed and the class also laughed loudly. Now she wanted to write something new and convincing on the topic, but she could not write. Her friend San helped her to write. She wrote in verse. तो इस टॉपिक को देखकर उसे बहुत ही हंसी आई और उसने लिखना तो चाहा लेकिन कुछ भी उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे लिखे. तब उसके जो फ्रेंड है सैन, उन्होंने उसकी हेल्प की और उसके बाद उन्होंने एन फ्रैंक ने एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लिखी, पोएम लिखी. Anne read the story in the class. It had a story of a mother duck and a father swan with 3 ducklings. तो इस स्टोरी में एन ने क्या लिखा कि एक मदर डक है और उनके साथ फादर स्वान है और उनकी 3 डकलिंग्स हैं. बेबी डक को डकलिंग्स कहा जाता है. द फादर स्वान हैड बिटन द 3 डकलिंग्स टू डेथ एज दे क्वैक्ड टू मच. और फादर स्वान जो है उन्होंने तीनों डकलिंग्स को जोर से काट कर बाइट करके मार दिया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे इसलिए. तो असल में उसने फादर स्वान जो है वो किसको सिंबलाइज किया है, अपने मैथमेटिक्स टीचर को, क्योंकि उसके मैथमेटिक्स टीचर भी बार 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 उसके पीछे ही पड़े थे और उसे बहुत ही पनिशमेंट्स दे रहे थे. इसलिए उसने फादर स्वान जो है वो मिस्टर कीसिंग को ध्यान में रखते हुए वो कैरेक्टर बनाया. In fact, it was a joke on Mr. Keesing, but luckily he took it in a right way. But इस ऐसे को पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग को गुस्सा आना बंद हो गया और उन्होंने इसे नज़रअंदाज करते हुए मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को समझने की कोशिश की और उसे एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया, उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया और उसे बातें करने के लिए छोड़ दिया. Let her talk. He allowed her to talk. And Mr. Keesing was a changed person. Then he also started cutting jokes in the class. और यह स्टोरी पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग जो है वो भी बहुत ही अच्छे हो गए, उनका नेचर चेंज हो गया और उन्होंने भी क्लास में बच्चों के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर दिया. So all these things she has written up in her diary and saved it so that it can be read later on, and that extract from her diary has been taken up in this course. So thank you for listening. We will continue in the next video very soon. Please do like and subscribe.